السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ یقینی طور پر ہوٹل میں جو افراتفری پھیلی تھی اس سے اس شاندار ہوٹل کے نقصانات بھی ہونے تھے۔ اگر میں ساری صورتحال بتا دیتا تو میری گردن گرفت میں آ سکتی تھی اور یہ معاملہ پولیس کی تحویل میں بھی جا سکتا تھا۔ اس لیے عقل سے کام لینا تھا۔ میں تھکے تھکے انداز سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ باہر کی باتیں اندر ہو رہی تھی، وہ باہر نکلی تھی۔ یقینی طور پر سڑک پر بھی کچھ حادثات ہوئے ہوں گے، میں ان کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ کچھ لوگ باہر بھی دوڑ گئے تھے اور اس کے بعد جب وہ اندر آئے تو ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ پتہ یہ چلا کہ اچھل کر ایک ٹرک پر چڑھ گئی تھی جو سبزیوں سے لدا ہوا تھا۔ ٹرک ڈرائیور کو نہیں معلوم تھا کہ پیچھے اس طرح کوئی فرد آ گیا ہے۔ بہرحال اس طرح باہر زیادہ ہنگامہ نہیں ہو سکا۔ چونکہ وہ گم ہو گئی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد ہوٹل کے مینیجر اور دو سپروائزر میرے پاس پہنچ گئے۔ سر، آپ روم نمبر 413 کے مکین ہیں؟ بھلا انکار کی کیا گنجائش تھی؟ میں نے گردن ہلا دی تو مینیجر کا موڈ بگڑ گیا اور وہ بولا، آئیے آپ میرے آفس میں آئیے۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک کہانی تیار کر لی۔ میں جانتا تھا کہ مینیجر میرے ساتھ سختی سے پیش آئے گا اور اس بارے میں سوالات کرے گا۔ چنانچہ میں اس کے شاندار آفس میں پہنچ کر تھکے تھکے سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا تماشا لگایا ہے آپ نے؟ یہ سب وہ انسانی ڈھانچہ کون تھا؟ تب میں نے اپنے چہرے پر شدید غصے کے آثار پیدا کیے اور کہا، مینیجر، میں پولیس سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تو ہم خود کر لیں گے، لیکن آپ بتائیے کہ کیا ہوا تھا اور وہ آپ کے کمرے سے برآمد ہوا تھا، کون تھا وہ؟ یہ سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ ایک عصیب زدہ کمرے میں آپ نے کسی مسافر کو ٹھہرانے کی جسارت کیسے کی؟ مجھے جانی نقصان بھی پہنچ سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ بتاتا ہوں مطلب آپ کو۔ اس کمرے میں مسلسل خوفناک کیفیتیں محسوس کر رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں مجھے یوں لگتا جیسے کچھ پر اسرار روحیں ادھر سے ادھر جا رہی ہوں۔ پہلے میں نے اسے ایک وہم سمجھا اور اس کے بعد میں سوچنے لگا کہ اگر میں یہ بات کسی کو بتاتا ہوں تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ ایک عصیب زدہ کمرہ ہے مینیجر صاحب، اور وہاں جو کچھ ہوا اس کی مکمل ذمہ داری آپ پر ہے۔ جائیے اس کمرے میں جا کر دیکھیے، وہاں ایک عجیب و غریب کیفیت ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب اندر جا کر دیکھیے، اٹھیے، چلیے میرے ساتھ، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مینیجر ان دونوں سپروائزروں کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور پھر وہ خاموشی سے میرے ساتھ چلتا ہوا اس کمرے میں آیا، لیکن وہ سیال مادہ جو شدید بدبودار تھا پڑے ہوئے دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ دونوں سپروائزروں میں سے ایک تو اپنا سینہ پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ وہ غالباً دل کا مریض تھا۔ مینیجر نے ادھر ادھر دیکھا، پھر خوف زدہ لہجے میں بولا، یہ سب کیسے اور کیا ہوا؟ میں نے کہا نا کہ آپ یہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں۔ آپ ہوٹل کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں لوگ اعتماد کے ساتھ آ کر ٹھہرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ پہلی بار ہوا ہو۔ آپ کو علم ہوگا کہ آپ کے ہوٹل کا یہ کمرہ یا پورا ہوٹل ہی عصیب زدہ ہے۔ خدا کے لیے ایسی بات نہ کہیے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو مر کیوں رہا ہے؟ میری مدد کر یا وہ دل پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اپنا چل واپس آ جا۔ مینیجر سپروائزر پر بگڑ گیا، لیکن سپروائزر سے اٹھا نہیں جا رہا تھا اور اس نے دوسرے سپروائزر سے کہا، دوسروں کو بلا کر اس کو اٹھا کر اس کمرے میں پہنچاؤ۔ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ آپ میرے ساتھ آئیے سر، میرے ساتھ آئیے۔ مینیجر کا لہجہ ایک دم سے نرم ہو گیا۔ غالباً وہ خوفزدہ ہو گیا تھا اور پھر وہ اپنے آفس میں جانے کی بجائے برابر کے ایک خالی کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے بتائیے، پلیز بتائیے۔ مینیجر، میں یہاں آیا تھا۔ آنے کے بعد ظاہر ہے کہ میرا یہاں قیام رہا۔ میری ایک دوست بیرون ملک سے یہاں آئی تھی۔ اصل میں اسی کے لیے میں نے یہ کمرہ لیا تھا اور مجھے اس کے ساتھ ٹھہرنا بھی پڑا۔ وہ چلی گئی، لیکن میں یہ محسوس کرتا رہا کہ اس کمرے میں کوئی پر اسرار سی کیفیت ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میرا مذاق اڑایا جائے گا، مجھے وہمی سمجھا جائے گا، اس لیے میں خاموش رہا۔ اب سے کچھ دیر پہلے جب میں اس کمرے میں داخل ہوا تو میں نے یہاں شدید بدبو محسوس کی۔
मुझे यूँ लगा कि जैसे गुसल खाने में कोई नहा रहा है। मुझे हैरत हुई और फिर जब मैंने गुसल खाने का दरवाज़ा खोल कर देखा तो मेरे खुदा मैंने अदाकारी शुरू कर दी। क्या हुआ, वहाँ कोई था? आप वहाँ जाकर देख लीजिए। नहीं, मुझे बताइए आप। वहाँ वॉशिंग टब में एक अजीब सा मादा पड़ा हुआ है और पूरा गुसल खाना उस मादे से भरा हुआ है। ओ माय गॉड, मैनेजर ने खौफजदा लहजे में कहा। मैं बाहर आया तो मैंने उस ढांचे को देखा और मेरे हवास गुम हो गए। मैं पथरा सा गया। तभी वो ढांचा दरवाज़ा खोलकर बाहर भागा और उसके बाद ये सारा वाक़या पेश आया। ओ माय गॉड, आप यकीन करें सर, ये बिल्कुल पहली बार हुआ इस होटल की ज़िंदगी में, पहली बार। लेकिन ये सब सर, मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँगा जी। थोड़ी देर पहले तो आपका रवैया बहुत सख्त था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी एक दरख्वास्त है, इस बात को यही रहने दीजिए। ये बात मंजर आम पर नहीं आनी चाहिए कि वो ढांचा इस कमरे से बरामद हुआ था। सर, हमारा होटल बदनाम हो जाएगा। हमारे होटल में फिर कोई मुसाफिर क़याम नहीं करेगा। हम बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे। मगर अभी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ। खुदा के लिए आप खामोशी इख्तियार कीजिए, खुदा कीजिए। बल्कि ऐसा करें कि आप अब इस कमरे में जाएं ही नहीं। यहाँ जिस कमरे में चाहें आप क़याम कर लें। थूकता हूँ मैं इस होटल के कमरों पर। ऐसा ना कहिए प्लीज़। आप किसी को भी ये सूरत हाल ना बताइएगा। हम हर्जाना अदा करने के लिए तैयार हैं। आपका जो सामान इस कमरे में मौजूद है उसके लिए इत्मीनान रखिएगा। पूरी एहतियात के साथ आप तक पहुंचा दिया जाएगा। मगर मेरे साथ जो हुआ, खुदा के लिए आप हमें माफ़ कर दीजिए। हम पूरी तहकीकात कराएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। हो सकता है कि ये कोई इत्तफाकी अमर हो, कोई ऐसी पुरअसरार रूह यहाँ दाखिल हो गई हो जिसने ये तमाम हरकतें की हों। लेकिन अगर ये बात मंजर आम पर आ गई तो हमारा होटल 2 कौड़ी का होकर रह जाएगा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना रवैया नरम किया। ज़ाहिर है कि मैं भी बात को बढ़ाना नहीं चाहता था, जबकि मेरे अपने हवास भी ठीक नहीं थे। मेरी तबीयत मतला रही थी। जो बदबूदार सयाल मैंने देखा था उसने मेरे होशो हवास ख़राब कर रखे थे और मैं सोच रहा था कि अब मेरा क्या होगा। बहरतौर मैनेजर मेरी खुशामद करता रहा। बाहर हंगामा आराई हो रही थी और इस सिलसिले में भी मुझे कुछ ना कहना था। मैंने वहाँ रुकना मुनासिब नहीं समझा, वहाँ से बाहर निकल आया। मैनेजर पहले ही बाहर निकल गया था और थोड़ी देर के बाद मैंने होटल भी छोड़ दिया। मुझे कोई पुरसकून गोशा दरकार था जहाँ बैठकर मैं करोती के बारे में सोच सकता, और ये पुरसकून गोशा मेरे घर के अलावा कौन सा हो सकता था। मैं घर वापस आ गया। गैर मुतवक्का तौर पर होटल के हंगामे से जान छूट गई, वरना ना जाने कहाँ कहाँ घसीटना पड़ता खुद को। मैनेजर तो होटल की साख कायम रखने के लिए मेरे साथ तावन पर आमादा हो गया था। पता नहीं बाद में वहाँ क्या हुआ, लेकिन ये उनका मामला था। मैं तो अपने होशो हवासों कायम करने की कोशिश कर रहा था। बहुत ज़्यादा बहादुर बनना ना तो मुमकिन है, ना आप उस पर यकीन करेंगे। जो वाक़यात गुजरे थे वो बेहद भयानक थे। ये अलग बात है कि सदियों पुरानी ऐसी शख्सियतों से मेरा वास्ता था जो कोई अरवाह खबीसा नहीं थी, बल्कि जीते जागते इंसान थे। दोनों के दोनों, और अनोखी रवायत जो सिर्फ़ कहानियों की शक्ल में आती रहती थी, यानी आब हयात, अमृत जल, चश्मा हवान और उससे मुतल्लक सैकड़ों दास्तानें मैंने पढ़ी थी, बल्कि कुछ लिखी भी थी, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ कहानियाँ होती थीं, मेरी अपनी घड़ी हुई कहानियाँ। मैं तो हैरान रह गया था। और इस वक्त जब मेरी मुलाकात ऐसे 2 इंसानों से हुई थी जो चश्मा हवान से फैज़याब हो चुके थे और ज़िंदगी गुजार रहे थे, मैंने उनके तासरात भी सुने, ख़ास तौर से करोती के। वो कहती थी कि अमर रहने के फ़ैसले ठीक नहीं होते और ना वो ख्वाहिश अच्छी होती है, क्योंकि कुदरत ने हर चीज़ फ़ानी पैदा की और ये चश्मा हवान वगैरह उसके मोजज़ात हैं। यकीनी तौर पर हम क़यामत पर यकीन रखते हैं और उस वक़्त जो कोई भी होगा फ़ना के बाद ज़िंदगी की मंजिल में आएगा अपने हिसाब किताब के लिए, और इससे तो किसी तरह इनकार किया ही नहीं जा सकता। इस वक्त ऐसे किसी वजूद का क्या होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल ये जो कुछ वाक़यात हो रहे थे ये नाकाबिल यकीन थे और होशो हवास छीन लेने के लिए काफ़ी। मेरे सारे बदन में सनाटे दौड़ रहे थे। फिर मेरे जहन में अपनी किताब का ख्याल आया और मेरे दिल को एक दुख सा एहसास हुआ। जिंदा सदियाँ तो नामुकम्मल रह गई। करोती मुझे कहाँ तक ले जाती? ये मेरी किताब कितनी तवील हो सकती है, इसका मैंने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया था। लेकिन किताब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, इसका मैंने सोचा भी नहीं था। अब क्या करूँ?
کیا ہونا چاہیے؟ گوتم بھنسالی بدماش اپنا کام دکھا گیا تھا اور اس نے کوروتی سے انتقام لے لیا تھا۔ سارے بدن میں اینٹھن ہو رہی تھی، رات ہو گئی تھی، طبیعت پر ایک بوجھ سا طاری تھا اور دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ کچھ کھانے پینے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا اور میں اسی طرح بستر پر دراز ہو گیا۔ میری اولین کوشش تھی کہ مجھے نیند آ جائے تاکہ اس ذہنی انتشار میں کچھ کمی ہو جائے۔ نیند نے مہربانی کی اور آہستہ آہستہ میری پلکیں جڑ گئیں۔ پتہ نہیں کتنی دیر سویا تھا کہ مجھے کچھ تحریک سی محسوس ہوئی۔ ایک لمحے تک تو نیم گنودہ ذہن کوئی کام نہ کر سکا، لیکن دوسرے لمحے مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے پاس لیٹا ہوا ہے۔ اس احساس کے تحت میں نے اپنا ہاتھ اپنے برابر رکھا تو ایک دم سے پورا بدن جھنجھنا کر رہ گیا۔ وہ ہڈیاں تھیں، سوکھی ہوئی انسانی پسلیاں جو میرے ہاتھ کی گرفت میں آئی تھی، اور ایک دم میرا ذہن جاگ گیا۔ مجھے کروتی یاد آ گئی۔ میرے حلق سے بے ساختہ چیخ نکلی اور میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو ایک استخوانی پنجہ میرے سینے پر آ کر جم گیا۔ اتنا مضبوط اور وزنی دباؤ تھا کہ میں اٹھ نہ سکا۔ تبھی کروتی کی آواز سنائی دی، مجھے دیوانگی کا شکار مت کرو ذیشان علی، لیٹے رہو اسی طرح۔ میرے پاس جو کچھ ہے میں کہہ رہی ہوں اسے غور سے سنتے رہو۔ اگر تم نے مجھے اضطراب برتنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے میرا ذہن منتشن ہو جائے اور میں کچھ کر بیٹھوں۔ اس کے الفاظ بڑے سخت تھے، ایسا لہجہ اس نے آج تک اختیار نہیں کیا تھا۔ پھر میرے سینے پر جو دباؤ تھا، مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں نے طاقت لگا کر اٹھنے کی کوشش کی تو شاید کامیاب نہ ہو سکوں۔ بدن نے ٹھنڈا پسینہ چھوڑ دیا لیکن لیٹا رہا۔ خود کو وہ مت ظاہر کرو جو مجھے دیوانہ کر دے۔ تم میرے محبوب ہو، میرے بہت اچھے دوست ہو، مجھ سے تعاون کرو۔ مجھ پر جو بپتا پڑی ہے تمہاری وجہ سے پڑی، اور تم اس طرح مجھ سے اجتناب کرو گے تو پھر میں کس کے سہارے آگے کا سفر طے کروں گی؟ تم ہی سے تو ساری باتیں کرنی ہیں۔ میں نے ذرا ٹھنڈے دل سے سوچا کہ کہہ تو ٹھیک رہی ہے، اگر میں اس سے اجتناب برتوں گا تو کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور میں جانتا تھا کہ وہ جس روپ میں بھی ہے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش ہرگز نہیں کرے گی، اور اب جو ہوگا وہ میری کہانی میں نئے اضافے کا باعث ہوگا۔ یقینی طور پر اس کی قربت کا ایک ایک لمحہ میرے کتاب کی صفحات میں اضافہ کرے گا۔ چنانچہ میں نے خود کو سنبھالا اور آہستہ سے اس کے استخوانی پنجے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے معاف کرنا کروتی، میں صرف ایک انسان ہوں، کوئی سپر مین نہیں۔ واقعی تم سے اجتناب ممکن نہیں۔ تم میری بہترین دوست ہو، میری ساتھی، میں نے کہا، اور اس نے میرے سینے پر سے ہاتھ اٹھا کر میری گردن میں حمائل کر لیا، پھر اپنا رخ میری جانب کر کے اپنا چہرہ میرے چہرے سے منسلک کر دیا۔ زندہ صدیاں پڑھنے والے ساتھیوں، مجھ پر ہنسو، دل ہی دل میں میرا مذاق اڑاؤ، ایک دوسرے سے میرے بارے میں باتیں کرو، کیونکہ تمہارا محبوب منصف ذیشان علی ایک عجیب و غریب کیفیت سے دو چار ہوا تھا۔ ایک سوکھے ہوئے ڈھانچے کا منہ میرے منہ سے مس ہو رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر گوشت کا کوئی نشان نہیں تھا، لیکن اس کا دباؤ مجھے اپنے ہونٹوں پر محسوس ہو رہا تھا۔ انسانی جذبات کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے، میں نہیں تو تم اس کا اندازہ ضرور کر سکتے ہو، لیکن جو فیصلہ میں نے کیا تھا میں اس پر قائم تھا۔ میں نے اس سے اجتناب نہیں کیا اور ایک خوفناک ڈھانچہ بری طرح سے مجھ سے لپٹ گیا۔ وہ بڑی گرم جوشی کا اظہار کر رہی تھی، مجھ سے لپٹی ہوئی تھی، مجھے بھینچ رہی تھی اور میری ہوا نکلی جا رہی تھی۔ اور کبھی کبھی انسان کو غیر متوقع طور پر کیسے کیسے حالات سے گزرنا ہوتا ہے۔ بہرطور میں اس کی طرح پرجوش تو نہ ہو سکا، لیکن اس کے بعد میں نے اسے احساس نہ ہونے دیا کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی برا تصور ہے۔ وہ دیر تک اپنے جذبات کا مظاہرہ کرتی رہی اور اس کے بعد پرسکون ہو گئی۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ کوئی بھی اس کیفیت کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا ذیشان علی۔ تم نے مجھے ایک سچے دوست ہونے کا ثبوت دیا۔ باتیں کرو گے مجھ سے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں کروتی؟ وہ آیا، تمہارے روپ میں آیا، اس لیے میں نے اس پر غور نہیں کیا۔ کیا تمہیں تو ہر طرح کی آزادی حاصل تھی؟ کچھ غلطیاں میری بھی تھیں، لیکن تم خود سوچو کہ وہ غلطیاں نہیں تھیں۔ میں ہوٹل کے کمرے میں تھی، ویٹر زیادہ سے زیادہ اندر آ سکتا تھا، مجھے غسل خانے میں پا کر واپس چلا جاتا، اس لیے میں نے غسل خانے کا دروازہ بھی بند نہیں کیا تھا، اور اگر بند بھی کر لیتی اور وہ بدبخت آنا چاہتا تو اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھی۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ اس نے بے شمار علوم سیکھے ہیں۔ ہم نے اپنی طویل ترین صدیوں کی زندگی میں اور کیا ہی کیا ہے۔ وہ تو بند دروازے کھول سکتا تھا، تمہارے روپ میں اندر آیا اور میں مسکرا دی، کیونکہ تم تو میرے روئیں روئیں کے رازدار ہو۔
फिर उसने वो शीशी खोलकर बाथिंग टब में डाली तो मैंने यही समझा कि तुम उसमें खुशबू डालकर मोहब्बत का इजहार कर रहे हो, लेकिन वो कुछ और ही करके आया था। उसने ऐसा किस लिए किया? इसलिए किया कि मैं तुम्हारी कुर्बत में थी। यहाँ एक एतराज़ पैदा होता है, मेरी कुर्बत में तो तुम थी, लेकिन ये लम्हात तो तुम्हारी ज़िंदगी में सदियों में गुजर चुके हैं, जैसा कि बकौल तुम्हारे औलाश, सिकंदर या फिर न्यूज़ की जैसे दूसरे पागलपन की बातें कर रहे हो। बता चुकी हूँ तुम्हें कि वो मैं नहीं थी, बल्कि सदियों के गुजरे करदार थे। मैं तो सिर्फ एक दीदावर थी जो देख रही थी, सुन रही थी, समझ रही थी, और वही सारी बातें मैंने तुम्हें बताईं। लेकिन अब मैं मुजस्समे कुरोती की हैसियत से तुम्हारे साथ थी, वो कुरोती जो गौतम भंसाली की आरज़ू थी, उसकी उम्मीद थी। ये उम्मीद को शायद कभी कोई ऐसा लम्हा आ जाए कि जब मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह पैदा हो जाए। वो उसी लम्हे के इंतज़ार में था, लेकिन तुमने मेरे दिल को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसके बाद वो मायूस हो गया। कुरोती, मुझे एक बात बताओ, मैंने अब अपने आप को पूरी तरह संभाल लिया। बेशक एक इंसानी ढांचा मेरे नज़दीक लेटा हुआ था, लेकिन वो कुरोती थी, कोई और नहीं। और उसके साथ एक हादसा पेश आया था, और ये भी एक अनोखा तजर्बा था जो एक मुसन्नफ़ को ही हो सकता है। समझ रहे हैं ना आप? बहुत देर तक खामोशी तारी रही और फिर कुरोती ने कहा, मुझे कभी ऐसी उम्मीद नहीं हो सकती थी उससे। मैं जानती थी कि वो मुझे बहुत ज़्यादा चाहता है, दीवाना है मेरे साथ वो कोई ऐसा सलूक करेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन ज़ीशान अली, मेरा साथ दो, मुझे प्यार करते रहो। मैं उसे नाकाम बनाना चाहती हूँ, मैं उसे यहाँ भी तड़पाना चाहती हूँ। ज़बत से काम लो प्लीज़, ज़बत से काम लो, मुझे नाकाम ना करो। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, वरना वो कभी मेरे साथ ऐसा ना करता। मेरे ज़हन में बहुत से बुरे ख्याल आए थे, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। ख्वाह मख्वाह अपनी मुसीबत नहीं बुलाना चाहता था, अलबत्ता मैंने इतना ज़रूर कहा। मगर मुझे एक बात पर हैरत होती है कुरोती। कौन सी बात पर? ये सलूक तो वो मेरे साथ भी तो कर सकता था। नहीं कर सकता, वो एतमाद से बोली। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें उसकी किसी भी गिरफ्त से महफूज कर दिया है। कैसे? मैंने एक चौंक कर कहा। एक अमल के ज़रिए, एक मंत्र के ज़रिए जो मुझे मालूम था, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने तुमसे पहले भी ये बात कही थी कि जो शायद तुम्हारे जहन से निकल गई। हाँ, तुमने मुझसे कहा था, मैंने तुम्हें महफूज कर दिया था, लेकिन ये मैंने नहीं सोचा था कि वो झंझलाहट में कुछ भी कर सकता है। मैं खामोशी रहा। ज़ाहिर है कि मैं खुद अपनी क्या राय दे सकता था, लेकिन ये सुनकर मुझे ज़रा सा इत्मीनान हुआ कि गौतम भंसाली मुझ पर इस तरह का कोई वार नहीं कर सकता। ये भी कुरोती की मेहरबानी थी, वरना मैं भला उसका क्या मुकाबला कर सकता था। मुझे तो ये सब कुछ आता ही नहीं था, और मैंने उससे और कोई सवाल नहीं किया। ये आफताब उस पर भी पड़ी थी और मुझ पर भी। हालांकि सच्ची बात मैं आपको बताऊं, कुरोती मुझसे बहुत करीब आ गई थी और एक ऐसा किरदार थी जो मेरे लिए बड़ा अनोखा और काफ़ी सनसीखेज था। उसके साथ गुजरा हुआ हर लम्हा एक ऐसी कहानी थी जिस पर अपने आप को भी यकीन ना आए, जबकि कहानी अपने साथ चल रही थी, लेकिन जो था वो था। अब मुझे भी सोचना था और कुरोती को भी। सुबह तक वो मेरे साथ रही और जागती रही, और वो बार बार ये महसूस करना चाहती थी कि मैं उससे मुनहरफ तो नहीं। यहाँ मेरे दोस्तों, मैं औरत की उस फितरत का तज़किरा करूँ, कितनी ही आगे बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन औरत पानों से दूर नहीं होता। वो अपने सारे वजूद में सिर्फ औरत ही रहती है, और कुरोती भी इस वक्त दहशत का शिकार थी। ज़ाहिर है कि उसकी सोचें कैसी अजीब अजीब होंगी। उसे सदियों जीना था और वो अपनी इंतहा नहीं जानती थी, लेकिन जिस अंदाज में वो जीना चाहती थी वो बिल्कुल उसकी पसंद के मुताबिक होना चाहिए था। अब जो कुछ हो गया वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। दूसरी सुबह मैं नींद की वजह से चकराया हुआ था। भला इस तरह किसी को नींद आ सकती है और उसके बराबर एक अस्तखबानी ढांचा लेटा हो, उसे मुखातब कर रहा हो, और बार वो मुझे अपने आप में समेट लेती और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। बहुत सी सोचें दामनगीर हो जाती। कब्र में इंसान के जिस्म का सारा गोश्त गल जाता है, ढांचे रह जाते हैं, जैसा कि मैंने बहुत से देखे थे, लेकिन वो कब्र की बात है। एक ज़िंदा इंसान किसी ढांचे के साथ कैसे गुजारा कर सकता है? शुक्र है कि उसके पास कोई ऐसा इल्म नहीं था जिससे वो दिल के अंदर की बात जान ले और पढ़ ले। सूरज पूरी तरह नहीं निकला था, अभी झटपटा फैला हुआ था। उसने मुझे आवाज़ दी, आली। हाँ कुरोती, मैंने अपने लहजे में प्यार घोलते हुए कहा, क्या सोच रहे हो मेरे बारे में?
दुखी हूँ और परेशान हूँ और ये सोच रहा हूँ कि काश मेरे पास ऐसी कुव्वतें होती जो तुम्हें तुम्हारी असली शक्ल वापस दिला देती। ये सोच रहे हो तुम। और उसके लहजे में खुशी का आंसर था, हाँ अली, हम पर ये आफत पड़ी है, लेकिन तुम फिक्रमंद ना हो। मैंने भी इस संसार में बहुत कुछ सीखा है। कभी सोचा नहीं था कि इस बारे में कि ऐसा कोई वक्त आ जाए तो क्या करूँगी। असनाकिया के बारे में तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैंने तारीख के उन बड़े किरदारों की ख्वाहिश पर असनाकिया का वजूद हासिल किया था, और जो कुछ भी हुआ था असनाकिया की तारीख के मुताबिक हुआ। लेकिन वो तरीक़ेकार मैं अब भी इख्तियार कर सकती हूँ और आर्जी तौर पर बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं कुरोती हूँ और कुरोती ही रहना चाहती हूँ। मैं गौतम बंसाली को कुत्ता बनाना चाहती हूँ और उसके हर अमल को नाकाम करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा मकसद है। मुझे सोचना पड़ेगा, ये गौर करना पड़ेगा कि मेरे साथ ये सब कुछ जो हुआ उसे ख़त्म करने के लिए क्या करूँ। ये सोचना पड़ेगा मुझे, और तुम मुझे उसका समय दो। मैं हर तरह से तुम्हारे लिए हाजिर हूँ कुरोती, फिक्रमंद ना हो। वो चंद लम्हा सोचती रही और फिर उसने कहा कि मुझे ऐसे कपड़े दो जो मैं अपने शरीर पर पहन सकूं। मेरे पास मर्दाना कपड़ों के ऐसे अंबार हैं। नहीं, मुझे एक बड़ी चादर दे दो। हाँ वो है, मैंने कहा और अपनी जगह से उठ गया। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि नज़र भर कर उसे देखूं। अलमारी से मैंने एक चादर निकाली और उसकी जानब बढ़ा दी। उसने वो चादर मेरे हाथ से लेकर ओढ़ ली और चेहरे तक ढक लिया, और फिर उसने कहा कि मैं आईने के सामने नहीं जाना चाहती। इंसान हूँ, जिंदा हूँ, अपनी ये हालत बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। और अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी दूसरी कैफियत में क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसे खाना पीना। वैसे मेरे अंदर की ख्वाहिशात तो बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह मेरी पहली शक्ल में थी। तुम जिंदा हो कुरोती, और मैं जानता हूँ कि तुम जितनी ज़हीन हो, बहुत जल्द तुम अपनी असली हसीयत में वापस आ जाओगी। भगवान तुम्हारा कहा दुरुस्त करे और तुम्हारा ये कहना पूरा हो जाए। वो अपनी जगह से उठी और कमरे के दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं मसहरी पर पाँव लटका कर बैठ गया और गहरी गहरी सांस लेने लगा। मेरे खुदा, मुझे अब क्या करना होगा। इतना अंदाज़ा मुझे हो गया था कि कुरोती आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, बल्कि अब तो और भी बहुत से ख्यालात मेरे दिल में आने लगे। कहीं ऐसा ना हो कि ज़िंदा सदियाँ मेरी आखिरी किताब हो और उसके बाद लिखने लिखाने का सिलसिला मुझे तर्क करना पड़े, क्योंकि कुरोती की जान बचना मुश्किल नज़र आ रहा था। उस वक़्त न जाने क्या क्या सोचे दामनगीर थी। मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। आधा घंटा और फिर पौना घंटा गुजर गया। कुरोती दरवाजे से बाहर निकल गई थी, वापस नहीं आई, तो मैं उठकर बाहर निकल आया। फिर मैं पूरे घर में उसे तलाश करता रहा, लेकिन वो पूरी इसरार तौर पर चली गई और वो मेरे घर में मौजूद नहीं थी। एक परेशानी सी ज़हन में पैदा हो गई। बहरहाल गुस्ल खाने में जाकर मैं बहुत अच्छी तरह नहाया, बल्कि मैंने अपने आप को खसूसी तौर पर इतना रगड़ा कि बाद जगह बदन के कुछ हिस्सों में जलन होने लगी। फिर लिबास पहन कर मैं बैठ गया। कुछ खाने पीने को दिल नहीं चाह रहा था, हालांकि भूख लग रही थी, लेकिन तबीयत में एक कराहियत सी थी। अलबत्ता मुझे ये कराहियत छुपानी थी। कुरोती को उसका एहसास नहीं होना चाहिए, बाकी तो और कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वह बददिल होकर मेरा ही त्याग पांजा करने पर तैयार हो जाए। आधा दिन चढ़ गया। भूख शिद्दत इख्तियार करने लगी तो किचन में जाकर खाने पीने की तैयारी की। तबीयत पर एक अजीब सी दहशत सवार थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्या ना करूं। पूरा दिन घर में पड़े पड़े ही गुजारा, और मुझे रात का खौफ था कि कहीं रात में उसकी वापसी ना हो जाए। जो रात गुजरी थी वो तो बड़ी अजीब गुजरी, और उसके असरात अभी तक जहन पर तारी थे। दिन में सोने की कोशिश नहीं की, लेकिन बस सरे शाम ही नींद आ रही थी। थोड़ा बहुत खाया पिया और जाकर बिस्तर पर लेट गया। बहुत देर तक इस वहशत का शिकार रहा कि देखे कब उसके कदमों की आहट सुनाई देती है, और फिर न जाने कब नींद आ गई और फिर सुबह ही को जागा था। एक खुशी का एहसास हुआ कि वो रात को भी नहीं वापस नहीं आई, और ये बात ज़रा अजीब सी थी। खुदा करे कि अब उसकी वापसी ना हो। जिंदा सदियों का वाइंड अप तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन वो भयानक वजूद कहीं मेरे ऊपर मुसल्लत ही ना हो जाए। और वो दिन भी गुजर गया, रात भी चली गई, और फिर इस तरह तकरीबन 3 या 4 दिन गुजर गए तो मुझे ज़हनी सुकून नसीब हुआ। वो कहीं चली गई थी और हो सकता है कि अब वो वापस ना आए। काश कि ऐसा ही हो, लेकिन अभी कुछ और दिल नहीं चाह रहा था।
उस दिन भी वो मुझे बताए बगैर चली गई थी और फिर शायद 7वां या 8वां दिन था कि मेरे अपने ही दिल में कुछ ख्याल आया। मैंने सोचा कि ज़रा इस पुरइसरार इमारत में जाकर तो देखूं जहां वो पुरइसरार किताब मौजूद है, अंदाज़ा लगाऊं कि अब वहां की क्या कैफियत है। और वैसे भी एक और ख्याल दिल में था कि अगर वो वहां है तो ये ज़रूर सोचेगी कि मैंने उस तरफ रुख नहीं किया। क्या मैं उससे मुनहरफ हो रहा हूँ? जब तक उस बात का यकीन ना हो जाए कि वो मुझसे कहीं बहुत दूर चली गई है, मुझे आराम से नहीं बैठना चाहिए कि कहीं मेरे लिए मुसीबत ही ना बन जाए। वैसे इस दौरान गौतम भंसाली का भी नामो निशान नहीं था। आखिरकार अपने प्रोग्राम के मुताबिक मैं उसकी कोठी की जानब चल पड़ा जहां वो किताब मौजूद थी और जो पुरइसरार इमारत कुरोती की मलकियत थी। इमारत बाएं बाएं कर रही थी, इंतहाई हौलनाक वीरानी बरस रही थी। हालांकि पहले भी ये इमारत वीरान ही होती थी, लेकिन इस वक्त कुछ अजीब सा एहसास हुआ। हो सकता है ये एहसास मेरे दिल के अंदर हो। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। यूँ महसूस होता था जैसे कुछ पुरइसरार निगाहें मेरा जायज़ा ले रही हों। हो सकता है कि कुरोती ने अपने आप को यहाँ पोशीदा कर लिया हो सकता है कि वो ये जायज़ा ले रही हो कि मैं यहाँ किस मकसद के तहत आया हूँ। मैं कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों में चकराता रहा और आखिरकार वहाँ पहुँच गया जहाँ वो किताब मौजूद थी। पत्थर की किताब जिसमें ज़िंदा सदियाँ थी, ना जाने कितनी सदियाँ, लेकिन मैंने उन सीढ़ियों को अबूर करके किताब तक जाने की कोशिश नहीं की। अब इस कदर भी अहमक नहीं था। पहले तो कुरोती सही सालम हालत में मौजूद थी। अगर मैं किसी दौर में चला जाता और वहाँ किसी बड़ी मुश्किल का शिकार हो जाता तो कुरोती मुझे उस मुश्किल से निकाल सकती थी। लेकिन अब अगर मैंने ये अहमकाना कोशिश की और किताब तक गया तो कहीं यूँ ना हो कि मैं तारीख के किसी वर्क में कैद होकर रह जाऊं और वहीं फना हो जाऊं। ना बाबा ना, इतना बड़ा मुसन्नफ़ नहीं बनना चाहता था। चुनाचा वहाँ से वापस पलट पड़ा। कुरोती अपनी कोठी में भी मौजूद नहीं थी। ज़ाहिर है कि असाबी कैफियत बेहतर नहीं थी। फिर 6-7 दिन मज़ीद गुजारे। गालबन 8वां दिन था जब बिल्कुल ही इत्तफाकिया तौर पर एक 3-4 दिन पहले के अखबार पर नज़र पड़ गई। मुझे अखबारात पढ़ने का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन बस वो अखबार मिल गया था और उसमें एक अनोखी कहानी दर्ज थी। ये कहानी एक डॉक्टर एहसान अली की कहानी थी और बड़े बड़े जली अल्फाज में छपी हुई थी। डॉक्टर ने बयान दिया था कि वो अपने क्लिनिक में मौजूद था। उस वक़्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मौसम बेहतर नहीं था। आखिरी मरीज उससे मुआयना करा के गया और उसके उर्दली ने बताया कि एक खातून उससे मिलना चाहती है। भेज दो, डॉक्टर ने हस्बे आदत कहा और उसका उर्दली ज़रा झटकता हुआ सा खड़ा रह गया। क्यों, क्या बात है? कुछ पुरइसरार सी औरत है जनाब। आवाज़ बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसने अपने आप को एक मोटे खेस में ढक रखा है, कहीं जज़ाम की मरीज़ा ना हो। तुम उसका चेहरा खुलवा कर देखो। उससे कहो कि यह ज़रूरी होता है कि मरीज़ को देखने के बाद अंदर भेजा जाए। कहा था साहब, पर नहीं मानी। उर्दली ने कहा, खैर चलो भेजो, डॉक्टर ने कहा और वो पुरइसरार वजूद उसके कमरे में दाखिल हो गया। डॉक्टर के इशारे पर कुर्सी पर बैठ गया। बैठो बीबी, अपना चेहरा खोलो, इस तरह क्यों ढक रखा है? क्या तकलीफ़ है तुम्हें? डॉक्टर, अगर इजाज़त हो तो मैं दरवाज़ा बंद कर दूं। क्या फजूल बातें कर रही हो? दरवाज़ा बंद क्यों करना चाहती हो? डॉक्टर साहब, मैं अपना मुआयना कराना चाहती हूँ। तो उसके लिए दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत है? क्या तकलीफ़ है तुम्हें? और ये तुमने इस तरह अपने आप को ढक रखा है, आखिर तुम हो कौन और क्या चाहती हो? डॉक्टर ने कहा। औरत कुछ लम्हे खामोश रही और फिर उसने अपने चेहरे पर से खेस हटा दिया और डॉक्टर उछल पड़ा। वो एक इंसानी ढांचा था जो बोल रहा था, बातें कर रहा था। डॉक्टर कुछ लम्हों के लिए साकत रह गया और उसे कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे ये एहसास होता कि ये सब कुछ नज़र का फ़रेब है। जो कुछ देख रहा है वो असलियत नहीं, वो असलियत ही देख रहा था। ये एक इंसानी ढांचा था। मुझसे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर, मैं तो खुद ज़िंदगी के बदतरीन अजाब से गुज़र रही हूँ। डॉक्टर, मेरे साथ एक हादसा हुआ जिसकी वजह से मेरा सारा जिस्म गोश्त गल कर बदन से जुदा हो गया, लेकिन मैं मुर्दा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि तुम मेरा इलाज करो। मैं तुमसे दरवाज़ा बंद करने के लिए इसलिए कह रही थी कि कोई आ ना जाए। डॉक्टर के मुँह से शुरू में तो कोई आवाज़ ना निकली और लेकिन फिर उसने खुद को संभाल कर कहा, तो क्या तुम कोई अरवाह बद हो? मैंने तुमसे कहा ना डॉक्टर, कसूर तुम्हारा नहीं, वरना इन अल्फाज का जवाब देती जो तुम्हारी तबीयत खुश कर देता। मैं ना अरवाह बद हूँ ना अरवाह नेक, मैं एक ज़िंदा हकीकत हूँ, ज़िंदा वजूद हूँ। एक ऐसे केमिकल की वजह से मेरी ये कैफियत हो गई है जो जिस्म को गला देता है। डॉक्टर, मेरे ठीक से मुआयना करो, मुझसे खौफ ज़दा होने की ज़रूरत नहीं।
اگر تم نے مجھے میری اصلیت واپس دلا دی تو میں تمہیں اتنی دولت دوں گی کہ تم اپنا ایک ہسپتال بنا سکتے ہو، ایک ایسا اعلیٰ ہسپتال جسے دنیا دیکھتی رہ جائے۔ ڈاکٹر بے مشکل تمام خود کو سنبھالتے ہوئے تھا اور اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ ایسا کون سا عمل ہو سکتا ہے جس سے تمہاری یہ کیفیت ہو گئی، لیکن اگر تم کہتی ہو تو میں تمہارا معائنہ کر لیتا ہوں، جاؤ اس ٹیبل پر لیٹ جاؤ۔ ڈاکٹر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اور وہ کسی بھی طرح اپنے اردلی کو یا کسی اور کو بلانا چاہتا تھا تاکہ اس کی کچھ مدد ہو جائے، لیکن عورت نے اس کی نیت کو بھانپ لیا اور بولی، سنو ڈاکٹر، میں جو کچھ کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے دیوانگی پر آمادہ مت کرو، میرا معائنہ کرو۔ یہ کہہ کر وہ ٹیبل پر جا لیٹی۔ وہ ایک انسانی ڈھانچہ تھا، 100% انسانی ڈھانچہ۔ ڈاکٹر ٹیبل کے پاس پہنچ گیا اور اسے موقع نہیں ملا تھا کہ وہ کسی کو بلانے کے لیے بیل ہی بجا دے۔ بس اس کے دل میں یہ آرزو تھی کہ اردلی اندر آ جائے اور یہ صورتحال دیکھ لے۔ چنانچہ وہ میز کے پاس پہنچ گیا۔ انسانی ڈھانچہ مکمل تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ اس کے تمام گوشت کے اعضاء پگھل چکے تھے۔ اندرونی نظام میں وہ تمام چیزیں موجود تھیں جو نظام کو متحرک رکھتی ہیں، لیکن صرف جھلی اور رگوں کی شکل میں۔ یہ دنیا کا سب سے حیرت انگیز وجود تھا جسے دیکھ کر یقین نہ آئے کہ اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی ہوگی، لیکن وہ ایک زندہ وجود لگ رہی تھی۔ صرف آواز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی عورت ہے، باقی اس کی شناخت دوسرے طریقوں سے ذرا مشکل سے ہو سکتی تھی۔ یہ ایک ڈاکٹر ہی سمجھ سکتا تھا کہ یہ ایک عورت کا ڈھانچہ ہے۔ ڈاکٹر نے اپنے آپ کو خود کو سنبھال لیا اور اس نے کہا، لیکن تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوا؟